Well, hello everyone. Thanks for watching my videos. As in my previous video, I mentioned to you that I am going to take this economy series chapter wise. So only in this regard, this first chapter, national income, is before you, and after completing this video, you will be quite comfortable with certain terminology named after GDP, NDP, NNP, and national income, of course. So what is GDP? Let me start with the basic fundamental definition of gross domestic product. So it is a monetary measure of the market value of all the final goods and services produced during a specific time period. Okay. So and national income, so value of all goods and services produced during your territory within a financial year in monetary terminology. Okay. So national income, normally NNP at factor cost, is may regarded as your national income. And GDP, gross domestic product, it is one of the economic growth indicator to measure countries economic growth in terms of when India got independence, our GDP was 2.47 lakh crore in rupee terms. Okay, and now we are talking in terms of 5 trillion economy. One more thing is that million, billion, and trillion. First, let me clarify this terminology. So, million means हजार का हजार, thousands of thousands. So जैसे हम लोग यहाँ 1000 में 3 जीरो हम लोग कहते हैं, सो ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी में, तो वहाँ क्या है कि हज़ार में जैसे कि 3 जीरो हो गया, 1000 इज़ हज़ार, एंड यू ऐड वन मोर हज़ार, I mean a 000 more. So 1000 again 000, then it will become million, and again 30, then it will become billion, and again 30, then it will become trillion. So 1 trillion means you will be having 12. Okay. So 5 trillion economy we are going to, we have to make India after passing the 2024. There is no doubt in that, and after my next videos also, and upcoming videos, I am going to deal how we are going to make 5 trillion economy, and the journey is very fruitful. So GDP, as I have told you that it is the monetary measure of market value of all the final goods and services produced in a specific time period. And what is NDP? Your net domestic product. So whenever in economic and accounting parlance you go from gross to net, then you have to adjust depreciation. So GDP is measured on market prices and constant prices. Market prices also called it is a current prices. So GDP at current prices and GDP at constant prices. So GDP at factor cost minus depreciation, you will be getting NDP, net domestic product. Okay. And remittances, when you add, remittances means if a person or institution working outside your territory, country, and if he or she sends money or incomes from abroad, if you add, then it will become a gross national product. Okay, so it is added, and at the same time outsiders working in your territory has to be subtracted for GNP. So this is GDP, NDP, GNP, and NNP, and factor cost. So why I am saying that this economic terminologies are quite important or significant for your investment activities. Actually, what happens, there is one very important equation in economics, aggregate demand, and demand, there are 4 to 5, consumption, investment, government expenditure, and net export. So the basic fundamental equation is that C plus I plus G plus export minus import. So जैसे कि ह्यूमन बॉडी हमारा है, हर एक चीज़ को आप नेचर से कनेक्ट करेंगे तो यू विल विजुअलाइज एंड यू विल बी क्वाइट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ every aspect. Even your investment is a very natural activity. I'm going to deal with my this fundamental analysis and basic concepts of your economy. That why this investment is a very natural process, and don't make it very complex. So like human body is made of, there is a very famous saying
दैट क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा. I mean, there are five elements which make your body to function like क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर. ठीक वैसे ही कोई भी इकोनॉमी सिर्फ 5 बेसिस पे चलती है. एग्रीगेट डिमांड लॉन्ग टर्म में जीडीपी के इक्वल हो जाता है. तो एग्रीगेट डिमांड का काफ़ी फेमस एक इक्वेशन है, दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स. एनएक्स मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. तो कोई भी इकॉनमी 5 तत्वों पे कैसे चलेगी, तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. सो नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. तो इकॉनमी भी आपकी इसी पे चलती है. तो या तो आप कंज्यूम करें तो आपकी जो है डिमांड ड्रिवन इकॉनमी है, तो आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो आपकी इकॉनमी बढ़ेगी, योर इकॉनमी विल इंक्रीज. आफ्टर व्हेन यू कंज्यूम मोर मीन्स ओनली फूड्स और नॉन फूड्स ही नहीं आते हैं, कोई भी कंजम्पशन एट एनी लेवल. And second thing is that investment whether your domestic investment or outside investment like your FIIs और FDIs, तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये इक्वेशन एक प्लस में है, एडिशन. सो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स गवर्नमेंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी में अगर पार्टिसिपेट कर रही है, कोई प्रोजेक्ट जो है वो रन कर रही है, तो आपकी जीडीपी जो आपकी इकोनॉमी वो बढ़ेगी. और एनएक्स मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट का मतलब है कि आप अपने किसी भी गुड्स को आप सेल कर रहे हैं अपनी टेरिटोरी के बाहर. एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग योर ओन गुड्स आउटसाइड योर टेरिटोरी, एंड इम्पोर्ट मीन्स परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड योर टेरिटोरी. Okay, so export minus import is NX. So what was that, the 5 things? Consumption, investment, G government expenditure, export और import. और ये ठीक वैसे ही है जैसे कि ह्यूमन बॉडी हमारा बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा. तो आप जब नेचर से कनेक्ट करते हैं, इकॉनमी इसके अलावा और कोई एस्पेक्ट पे टिक ही नहीं सकती है, इसके अलावा और कोई एक्टिविटी हो ही नहीं सकती है. ठीक वैसे ही जैसे कि काफ़ी नेचुरल प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी का. आप नेचर के करीब जाएंगे, जितना करीब जाएंगे आपके लिए बेहतर होगा. ठीक, आपकी इकॉनमी को आपको जो उसके नेचर को समझना है, आपकी इकॉनमी है क्या. अगर आपकी इकॉनमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है, जैसे कि हम अगर चाइना का एग्जांपल लें, तो चाइना की जो इकॉनमी है वो एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स. एनएक्स मीन्स एक ई एक्स माइनस आई एम, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. तो एक्सपोर्ट जब आप बढ़ेगा टेकिंग ऑल द 4 कॉम्पोनेंट कांस्टेंट, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, एग्रीगेट डिमांड इकॉनमी की बढ़ रही है. एट द सेम टाइम हमारी जो है वो कंजम्पशन बेस्ड और डिमांड ड्रिवन इकॉनमी है. तो जितना ज़्यादा हम लोग कंज्यूम करेंगे मीन्स अगर हम जितना ज़्यादा हमारी इनकम बढ़ेगी और जितना ज़्यादा कंजम्पशन पे हम लोग जोर लगाएंगे, तो हमारी इकॉनमी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी. एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट, बहुत से कंट्री जो होती हैं वो FIIs और FDI पे डिपेंडेंट रहती हैं, जैसे कि फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. तो ये जो इन्वेस्टमेंट आता है इससे भी आपकी इकॉनमी बढ़ती है. या जी फैक्टर है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब बढ़ जाएगा. नॉर्मली जब आपकी इकॉनमी डाउन टर्न में जाती है तो ऐसे केस में डिमांड को क्रिएट किया जाता है. तो लॉन्ग टर्म में जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो जीडीपी के इक्वल्स होता है. और जीडीपी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इट इज़ अ ड्यूरिंग अ फिनेंशियल ईयर ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फिनेंशियल ईयर विद इन योर टेरिटरी. तो आप एक इन्वेस्टर के तौर पे क्यों ना आप जीडीपी में ही इन्वेस्ट करें, क्यों ना आप जीडीपी में ही इन्वेस्ट करें. तो जीडीपी में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है. और एक और चीज़ जो है, जैसे हमारे यहाँ तो इंडिया ये निफ्टी आई मीन NSE 50, तो 50 जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज जो बड़े शेयर मार्केट में जो बड़ी कंपनियां हैं उनका एक इंडेक्स है, और सेंसेक्स जो है वो 30 कंपनी. तो आप अगर निफ्टी का लॉन्ग टर्म में जब आप कोरिलेशन देखेंगे तो वो काफ़ी स्ट्रेट लाइन लीनियर एक रिलेशनशिप होता है. मैंने देयर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन योर जीडीपी एंड निफ्टी और योर इंडेक्स. तो इंडेक्स लॉन्ग टर्म में, तो आप अगर कंट्री की इकॉनमी में ही डायरेक्ट अगर आपका पार्टिसिपेशन हो, तो लॉन्ग टर्म में अगर जीडीपी अगर आपकी बढ़ रही है
तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सो विदाउट इवन अ सिंगल, आई मीन जिसको कहते हैं कि नो नथिंग इन्वेस्टर या एक कॉमन मैन, अगर सामान्य आदमी अगर वो भी ऐसे सिर्फ एक इंडेक्स में अगर इन्वेस्ट करता चला जाए तो उसका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा होगा और लॉन्ग टर्म में वो बहुत अच्छा एक वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। सो आई रिकमेंड ईच वन ऑफ यू at least know nothing investors, at least invest in index funds, index fund। so एक वैनगार्ड के थे, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ये इंडेक्स फंड जो है वो बनाया था। और इंडेक्स फंड में यू गो एंड इन्वेस्ट इन ब्लाइंडली इंडेक्स फंड, क्योंकि जीडीपी, यू आर इन्वेस्टिंग इन जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी की समझ बहुत ज़रूरी है योर फॉर ऑल योर इकोनॉमिक, आई मीन योर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। तो इकॉनमी को कैसे हम, जब जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इकोनॉमिक इंडिकेटर और आप कैपिटल मार्केट दोनों को सेपरेट आप करके एनालाइज करें फॉर द टाइम बिंग। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों का, जब आप इट ग्राफ में, मैं आने वाले वीडियोस में ग्राफ को भी लेके आऊँगा और MS एक्सेल पे भी वो सारी एनालिसिस हैं, या आप खुद कर सकते हैं। और एक सोर्सेज मैं आपको बता दूं, RBI के जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो एक डेटाबेस में हैंडबुक ऑफ इंडियन इकॉनमी, हैंडबुक ऑफ इंडियन इकॉनमी, और उस पर आप रेफ़र कर सकते हैं। या फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में जब आप जाएंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आप इकोनॉमिक सर्वे को जो है, इकोनॉमिक सर्वे, उसको आप जो है डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, और उससे आप वो डेटा को देख सकते हैं। और उसमें आप देखेंगे कि ये कौन कौन से इंडिकेटर है। तो आप एक डेटा को लेके और जब आप रन करेंगे तो एक लॉन्ग टर्म में जब आप देखेंगे तो एक लीनियर रिलेशनशिप दोनों के बीच में आपको मिलेगा। तो सबसे सिंपल जो एक एनालिसिस या फिर एक रिज़ल्ट यहाँ से हम लोग रेफ़र कर सकते हैं कि क्यों नहीं हम लोग जीडीपी में ही इन्वेस्ट करें। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन जीडीपी? फर्स्ट क्वेश्चन arises। So investing in GDP means you just go and start with the index। So in long term में, जैसे कि democratization of कैपिटल मार्केट, यू कैन से कैपिटल मार्केट अगर आपकी कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में है, ये खुद दिखा रहा है कि आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप में काम कर रहे हैं, आपका सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो इस तरह से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जीडीपी में। सो आई विल बी टारगेटिंग दैट एंड इट इज़ माई स्ट्रॉन्ग recommendation that you go and invest in index fund। So in long term you will be creating a good wealth also। So in my upcoming videos also I will be dealing with output and prices। So let me conclude this session by saying that GDP is the economic indicator and will be having a investment